تو پاکستانیوں ان چیزوں سے سمجھ جاؤ. یہ نگران جو ہیں ان کے نوکر ہیں، اور نگران جو ہیں یہ اب اپنے آقا کو خوش آمدید کہیں گے، اپنی ایڑی چوٹی کا زور لگائیں گے کہ نواز شریف کو جو ہے وہ چھڑوا سکے. یہ بلڈنگ دیکھ رہے ہو میرے پیچھے جو ہے، اس عدالت میں فیصلہ ہونا ہے. اب فیصلہ یہ ہونا ہے قانون کی حکمرانی کے لیے فیصلہ ہوگا یا قانون کے تابوت میں آخری کیل چونکی جائے گی. پارلیمان کو یہ حق حاصل ہے کہ سپریم کورٹ کے اختیارات کی تقسیم میں یہ دخیل ہو سکتی ہے. اگر یہ پرنسپل اطلاق ہوگا آنے والے وقتوں میں تمام قانون سازیوں کو، کیونکہ اس میں یہ ہولڈ کر دیا گیا ہے کہ پارلیمان کا جو حق ہے قانون سازی کا، وہ اتنا سپیریئر ہے کہ جہاں پہ آئین نے خود سپریم کورٹ کے ڈومین کو علیحدہ رکھا ہے یا عدلیہ کو جو ہے سپریشن آف پاور کے تحت علیحدہ رکھا ہے، آزادی دی ہے، اس حد تک یہ اگر لیجسلیشن کو الاؤ کرتے ہیں تو میرا خیال یہ ہے کہ آنے والے وقتوں میں جو قانون سازی ہے اس کو عدالتوں کے لیے سیٹ ناٹ کرنا یا کالعدم قرار دینا یا امینڈ کرنا اور وہ تشریح کی بنیاد پہ بہت مشکل ہوگا. صاحب ایسا لگ رہا ہے کہ ایک طرف آپ جمہوریت کی بات کرتے ہیں، عوامی نمائندگی کو حق حکمرانی ملنا چاہیے، دوسری طرف پارلیمان کو اگر تقویت ملتی ہے عوامی نمائندوں کو، تو اس میں ٹیکنیکلی خرابی کہاں ہے؟ وہ تو عوام کے نمائندے طاقتور ہوں گے، چاہے عمران خان ہو، نواز شریف ہو، کوئی بھی ہو. یہ تو اچھی چیز ہے کہ پارلیمان اس حوالے سے لیجسلیشن کرے. جب سپریم کورٹ فل کورٹ بناتی نہیں، انٹرنل میٹنگز کے لیے بھی اکٹھے نہیں ہوتے. پارلیمان کا حق لیجسلیشن جو ہے وہ آئین دیتا ہے، لیکن اگر آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ پارلیمان کی جس قسم کا قانون بنائیں، آپ کے پاس کوئی حق نہ ہو اس قانون کو ایگزامن کرنے کا، نظر ثانی کرنے کا. مثال دے دیتا ہوں، یہ جو ابھی آفیشیل سیکرٹ ایکٹ لاسٹ ٹائم جو تنازع بھی بنا، اور جو ملٹری ایکٹ میں جو ترمیمات کی گئی کہ آپ کے گھر میں بغیر وارنٹ کے کوئی گھس سکتا ہے، یہ اس پارلیمان نے قانون بنایا. یہ ایک سیاہ قانون ہے. کن مہذب معاشروں میں ایسے قوانین بنتے ہیں؟ پارلیمان ایسے قوانین بناتی ہے. اور یہ اس پارلیمان کو تو آگے رکھا گیا، ربڑ اسٹیمپ تھا. تو اب آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ پارلیمان اگر یہ لکھ دے کہ سورج جو ہے وہ مشرق کی بجائے مغرب میں نکلا کرے گا تو کوئی ان کو کچھ نہ کہے؟ ایسے پھر میں آپ کو بتا دوں، دیکھیں 184(3) یہ آئینی پروویژن ہے. آرٹیکل 184(3) آئین کہتا ہے، اب آئین میں اگر جہاں پہ اپیل کی ریمیڈی ہے وہاں آئین نے اسپیسیفکلی کہا ہے کہ اس کے اگینسٹ سپریم کورٹ کا یہ اپیل کا حق ہوگا. جب 184(3) میں اپیل کا حق آئین نے نہیں دیا ہے تو آپ سب آرڈینیٹ لا کے ذریعے اس میں اپیل کا حق متعارف کرا رہے ہیں. تو اب یہ کوشچن پیدا ہوتا ہے کہ کیا اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آئینی امینڈمنٹ ہو؟ یہ جو میں بات کر رہا ہوں وہ پارلیمان کے اس حق کو چیلنج نہیں کر رہا ہوں. دو چیزیں بدستور رہنی چاہیے کہ قوانین جو ہیں عوام کے مفاد میں بننے چاہیے. یہ ایسے قوانین، اب سائفر جو آفیشیل سیکرٹ ایکٹ ہے سن 1923 کا بنا ہوا قانون ہے، اور اس کے علاوہ آپ کے پاس اینٹی اسپائنیج ایکٹ بھی ہیں، آپ کے پاس دہشت گردی کے قوانین بھی ہیں. اب جو انہوں نے اب اس میں ترمیمات کی ہیں آفیشیل سیکرٹ ایکٹ میں، پہلے یہ جنگ کے زمانے کے لیے لاگو ہوتا تھا، اب کہتے ہیں حالت امن میں بھی. اور سب سے زیادہ اس قانون سے ہر معاشرے میں جہاں پہ جن جورسڈکشن میں ہیں وہاں صحافی متاثر ہوئے ہیں. یعنی آپ کسی سرکاری دستاویز کو آپ اٹھائیں گے اور رپورٹ کریں گے جناب آپ نے اصلاح کی وائلیشن کر دی ہے. تو کیا ایسے قوانین ہمارے معاشرے میں ہونے چاہیے؟ آپ کے مینٹیننس آف پبلک آرڈر کے ڈریکونین لاز ہیں، آپ کے پاکستان کے پروٹیکشن ایکٹ ہیں، پہلے آپ کے FCR ہوا کرتے تھے، فرنٹیئر کرائم ریگولیشن. ہمارے ہاں بڑے بلیک لاز ہیں. یہ آپ کی زمین جو ہے بغیر کسی وجہ کے کوئی بھی حکومتی ادارہ یا یہ جو ہاؤسنگ سوسائٹیاں ہیں وہ آپ کی زمین ایکوائر کر لیتے ہیں. یا لینڈ ایکویزیشن ایکٹ
वो भाई ये किन मुअज़्ज़फ़ मुआशरे में होते हैं? ज़मीन आपकी है जनाब, वो 10 लोग मिल के जो हैं कह देते हैं नहीं इस गांव की ज़मीन को हमने हथियाना है। जिस तरह पूरे पाकिस्तान की ज़मीन हथियाई जा रही है, तो ब्लैक क्लास को, पब्लिक के मफाद के मनाफी कवानीन को अदालतों को प्रोएक्टिव अप्रोच देनी चाहिए। कल का जो फैसला हुआ है कुछ अच्छे एस्पेक्ट हैं, लेकिन सिर्फ मेरा कंसर्न ये है कि आपने पार्लियामान को अपनी ही जड़ों को काटने का मौका दिया है और ये सिलसिला रुकेगा नहीं। जी बड़े खामोश हो गए हो। शुक्रिया। घर के हवाले से क्या अपडेट हुई है? हाँ जी? क्या अपडेट हुई है जो गिराया गया था घर के साथ आपका, तो उसकी वो कोई तो अपडेट मलबूस हो, मतलब ये अभी क्या अपडेट? सरकारी प्रोटोकॉल में लंदन से भिजवाया गया है सऊदी अरब, इस पे क्या कहेंगे? तो वो तो जो बाहर प्रोटोकॉल जो ममालिक दे रहे हैं वो तो उनका काम है। हम तो पाकिस्तान के साथ रिलेटेड है। पाकिस्तान में अगर प्रोटोकॉल की पाकिस्तान के हाई कमिश्नर उनको अलविदा करने के लिए गया है। अच्छा, मुझे इसका इल्म नहीं था। अगर गए हैं तो पाकिस्तानियों इन चीज़ों से समझ जाओ, ये निगरान जो हैं इनके नौकर हैं, और निगरान जो हैं ये अब अपने आका को खुशामदीद कहेंगे, अपनी एड़ी चोटी का जोर लगाएंगे कि नवाज शरीफ को जो है वो छुड़वा सके। ये बिल्डिंग देख रहे हो मेरे पीछे जो है, इस अदालत में फैसला होना है। अब फैसला ये होना है कानून की हुक्मरानी के लिए फैसला होगा या कानून के ताबूत में आखिरी कील झोंकी जाएगी। 10 लाख लोग जमा कर सकेंगे नवाज शरीफ साहब के मीनारे पाकिस्तान जलसे में, आपके ख्याल में? कहते हैं हमने लोगों को ठिकाना नहीं है, उनको लोगों का ख्याल। देखिए, मीनारे पाकिस्तान अगर नवाज शरीफ ने नहीं देखा है तो वो देख लेगा। बाकी अगर लोग आते हैं तो वो कहते हैं ना पश्तो में चिदा गज उदा मैदान, ये गज और ये मैदान आप लोग देख लेंगे। 10 लाख छोड़े इंशाल्लाह मीनारे पाकिस्तान पे 10 लाख आप जल्दी देख लेंगे कि ये जो कल की डेवलपमेंट हुई है ये तमाम कोशिशें कर लें, तमाम सरकारी मुलाजिमीन और तमाम पटवारियों को ले जाएं। फिर भी मैं दावे से कहता हूं कि मीनारे पाकिस्तान में ये गाड़ियां खड़ी करेंगे, गाड़ियां गिनवाएंगे, क्योंकि जगह ज्यादा गिरती है। ये 20,000 भी जमा कर लें तो मेरा ख्याल है कि ये इनकी तवक्कुआत से बढ़कर होगी। तो सर, खबर गर्दिश कर रही है कि पंजाब पुलिस को कोई टास्क दिया गया है कि वो जो बंदे इकट्ठे करके MNA MPA की गाड़ी तक पहुंचाने में उनका भी कोई टास्क दिया गया है। अगर ऐसा होता तो रियासत इसके साथ जितना तावन कर रही है, आप समझते हैं कि ये ठीक है? मैं तो सिर्फ आपकी सवाल के जवाब में यही कहूँगा कि जो हो रहा है वो कहते हैं ना, सुनता जा शर्माता जा। आपका कितना नुकसान हुआ है जो फार्म हाउस को गिराया गया? जो एस्टिमेट किए वो 6 करोड़ 50 लाख। तो आपने इस हवाले से अदालत से रुजू की है, जी तो उसमें क्या डेवलपमेंट हुई है? मेरा ख्याल है कि मंडे तक नोटिस हो जाएंगे। इसके हवाले से आजम तारड़ साहब भी आगे हैं, राइट साइड में, अच्छा, आप देख सकते हैं। आपने आपने आज कहा है कि नाअहली था या अच्छा, आपने मरियम नवाज साहिबा का नाम लिया कि वो इस तमाम तर मामले के पीछे हैं जो घर गिराया गया है, तो इस हवाले से क्या उनको भी, उनके खिलाफ भी कोई कार्रवाई या कोई एविडेंस है इस हवाले से आपके पास कि मरियम नवाज साहिबा ने की है? एविडेंस जो है, चूंकि मैंने जो फेस किया है और जो पहले पर्चा कराया और जिस शिद्दत से ये लगे हैं, आजकल पूरी हुकूमत तमाम ताकत जो है वो नवाज शरीफ के ख़ानदान के पास है। तो लिहाजा जिस तरीके से इन्होंने ये कार्रवाई डाली, इसमें शक नहीं है कि इनको जो है मेरी बातें बड़ी चुभ रही हैं, तकलीफ दे रही है, तो इन्होंने ये रद्द-ए-अमल दिखाया है। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये जितना PMLN के साथ हुआ, अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हुआ है, ये सारा वाइड बेनिफिशियरी तो नवाज शरीफ है। जब ये हमें मलियामेट कर रहे हैं, हमारी पार्टी को पंजाब से, बलूचिस्तान से और सिंध से जिस अंदाज में इन्होंने ख़त्म करने की कोशिश की है, तो इसका डायरेक्ट फ़ायदा जो है किस पार्टी को मिल रहा है? पंजाब में हमारा मुकाबला किसके साथ था? पीपल पार्टी के साथ तो नहीं था, JUI के साथ नहीं था। सिर्फ PMLN जो थी वो दावे कर रही थी कि हम मौजूद हैं। तो लिहाजा ये अब इनकी कोशिश है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है इतना डराया जाए लोगों को और PTI को कि ये जो है उम्मीदवारी खड़े न कर सके। तो ये फ़ायदा जो है वाइद जो है शरीफ खानदान को दिया जा रहा है। सर, फलस्तीन के हवाले से बताइएगा कि नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ
में से किसी ने भी फलस्तीन के हवाले से कोई बयान नहीं दिया, ना कोई मजम्मत की है। तो क्या ये इंटरनेशनल पावरों का दबाव है कि ये बयान नहीं दे रहे? इन्होंने कभी भी जालिम के खिलाफ आवाज़ नहीं उठाई है, आपको शायद पहली दफ़ा पता चला होगा। वो पैसे जब्त कर लेंगे ना इनके। सिर्फ देखिए, आपने कभी देखा है ये मजलूम के साथ खड़ी हुई हो या इनकी पार्टी खड़ी हुई हो? ये निगरान हुकूमत तक जो है आवाज़ नहीं उठा रही है। पाकिस्तान में आजकल हर जगह पे अमेरिका और अमेरिका के जितने ये भट्टू हैं वो छाए हुए हैं, उनके टेंटिकल्स हैं, पंजे हैं, तो लिहाजा इनकी जरूरत ही नहीं हो सकती अपने पीटीआई अपना पहला जलसा कब करने जा रही है और प्रॉपर कैंपेन बहुत प्रेशर है लीडरशिप पे वर्कर की तरफ से, और अब जो है लीडरशिप को मजबूरन जो है कोई फैसला करना होगा। अभी तक फैसला नहीं किया? अभी तक ये फैसला नहीं हुआ है कि जलसा कब करना है। दरखास्तें दी गई हैं जलसों के लिए, कन्वेंशन के लिए, लेकिन मेरा ख्याल ये है कि अगर ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अब पब्लिक को बाहर लाने का फैसला नहीं किया तो वो देर हो सर, जाएगी। फलस्तीन के हवाले से कल प्रोटेस्ट कॉल दे रखी है पीटीआई ने प्रेस क्लब के बाहर, उस हवाले से इंतजाम के बताइएगा, करिए कि आप शिरकत करेंगे? ये मुझे को एप्लीकेशन दी गई है लेकिन अभी तक हाल अप्रूवल नहीं दिया गया वहाँ प्रोटेस्ट का, क्या देखें, कहेंगे? जो रबीउल अव्वल में जो 14 अगस्त में इन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ किया, तो ये फ़लस्तीनियों की हिमायत इतनी ज़रूरी नहीं है जितना हमें सबक सिखाना ज़रूरी है। आपको अब देख लेंगे ना, जितने पीटीआई के लोग निकलेंगे उनको जो है ये राय रास्त पर लाने के लिए उनके साथ जुल्म और जबर जरूर करेंगे। बैरिस्टर गौहर अली खान साहब कल बड़े पुरएतमाद थे, उन्होंने कहा कि इसी महीने खान साहब बाहर आ जाएंगे। उन्होंने कहा कि ये खबर भी है, पेशन गोई भी है, प्रेडिक्शन भी है, सब कुछ है। बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट थे वो गुज़श्ता रोज इलेक्शन कमीशन में मुलाकात के बाद। गौहर अली खान प्यारा आदमी है, इनोसेंस आदमी है, आई लव हिम, और यकीनन उसने अपने इल्म के बलबूते पे बात की होगी, और अल्लाह करे इसी तरह हो जिस तरह गौर भाई ने बात की। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। अपना सवाल कल के लिए रखो।